Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sanjay sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. कैसे हैं सर आप? बस ठीक ठीक. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून दरपाल. गुड आफ्टरनून. स्टार्ट करें सर. स्टार्ट करें हाँ सर. जैसा. हाँ 12 तो हो गया. हाँ हाँ ठीक है, टन्नन सर जुड़ते रहेंगे, आप स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ. Okay. Good afternoon, all the participants. I am Dr. A. Satanan. On behalf of Dr. C.V. Raman University, I would like to welcome you all in this today's webinar that is on green computing. I would like to introduce our today's expert, respected Dr. Sanjay Kumar sir. He is working as a professor and head Department of Computer Science, Pandit Ravi Shankar Shukla University. Sir is having very much experience in the field of computer science. He has delivered more than 50 expert talk in the various field of computer science. Apart from that, sir has published more than 80 research papers in a various reputed journals. Apart from that, sir is a part of various recognized body like AICT, UGC, and sir is also member of UGC, NEC, and NEC expert committee. So now I hand over to the Sanjay Kumar sir to deliver his talk. Sir. Thank you, Shri Tandon ji, Thank you, sir. for introducing me and giving me this opportunity to share my thoughts in this morning. So I am going to present the screen now. Is it visible? Yes, sir. Okay. So, as you know, topic of today's session is green computing, and we call it as a step towards greener tomorrow. Okay, a step towards greener tomorrow. So I am starting my presentation with few lines, poems. कबीर दास जी ने कहा था अपने समय में, क्यों री कमलिनी तू क्यों कुमलानी, तेरी नाल सरोवर पानी. कबीर दास जी कहते हैं कि कमल का फूल तो पानी में खिलता है, लेकिन पानी में खिलने के बावजूद वो कुम्भला क्यों रहा है, सूख क्यों रहा है. तो दुष्यंत कुमार जी, जो कि समकालीन कवि नहीं थे, बहुत बाद में पैदा हुए दुष्यंत कुमार जी कबीरदास जी के, लेकिन हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, ऐसा जोड़ सकते हैं कि दुष्यंत कुमार जी ने उसका आंसर दिया. अब तो इस तालाब का पानी बदल दिए, कमल के फूल अब मुरझाने लगे हैं. माने तालाब का पानी इतना पॉल्यूटेड हो गया कि उसके कारण वो कमल जो है पानी में खिल नहीं रहा है, बल्कि कुम्भला रहा है. तो इस तरह से जो है आजकल जो पॉल्यूशन हो गया है, उसके कारण सब तरफ पूरी प्रकृति सृष्टि में उसका असर हुआ है. अभी हम लोग आगे देखेंगे. तो कंटेंट्स ऑफ माय टॉपिक विल बी objective introduction, impact analysis of waste on environment, carbon emission, energy awareness, energy saving,
steps taken in computer science department of Ravi Shankar University. Conclusion. So objective of this presentation is to create awareness about pollution through IT sector and send message to check it. अपना प्रेजेंटेशन का उद्देश्य ही है कि आम जनता के बीच में हम लोग जागरूकता फैलाएं. It is a common thought that we are using, that means light devices, laptop, mobile. So only the big industries that create pollution. PC, laptop, mobile phones, tablets also create pollution. Therefore, each user owes responsibility to curb it. ये कॉमन थिंकिंग है कि केवल बड़ी ही इंडस्ट्री जो है वही बस ये पॉल्यूशन क्रिएट करेंगी, जिससे चिमनी से धुआं निकलता रहता है, काला धुआं निकलता रहता है. हम लोग को दिखता है जब हम लोग ट्रेन या बस से शहर के बाहर जाते हैं तो ऐसा नहीं है. साधारण जो पीसी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उससे भी पॉल्यूशन होता है. ये चीज मैं बताऊंगा आगे. अनफॉर्चुनेटली लो लेवल ऑफ अवेयरनेस एग्जिस्ट अमंग पीपुल अबाउट ई वेस्ट. ई वेस्ट के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है. तो वी विल डील विथ ई वेस्ट आल्सो. यूनाइटेड नेशन has set up 17 goals for sustainable development to be achieved by 2030. Development is one thing, sustainable development is one thing, rather a different thing. Sustainable development माने ऐसा डेवलपमेंट जो कि सस्टेनेबल हो. कहने का मतलब ये नहीं कि एक तरफा डेवलपमेंट हुआ, किसी एक तरफ तो बहुत डेवलपमेंट हुआ और दूसरी तरफ विनाश हो गया. हर तरफ से डेवलपमेंट हो, यह सुनिश्चित किया जाना है. ये यूनाइटेड नेशंस कह रही है, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं. यूनाइटेड नेशंस ने 17 गोल्स सेट किए हैं 2030 तक अचीव अप करने के लिए. सभी गोल मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इन गोल्स को आप लोग गूगल से देख सकते हैं. दिस गोल्स आर जीरो पॉवर्टी. ये गोल नंबर 1 है. पूरी दुनिया में गरीबी खत्म हो जाए, जीरो हंगर, कोई भूखमरी न रहे, गोल 2 है. गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गोल 3 है. क्वालिटी एजुकेशन, टू इम्पार्ट एवरीबडी द क्वालिटी एजुकेशन इवन अप टू द कॉमन मैन ऑफ ए विलेज. सब तरफ एजुकेटेड हो लोग, गोल 4 है. जेंडर इक्वलिटी, गोल 5 है. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सबको अच्छा पानी मिले. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, गोल 7. हम लोग का आज का टॉपिक गोल 7 से रिलेटेड है. सो क्वालिटी एजुकेशन इज गोल 4, वाटर इज गोल 6 एंड क्लीन एनर्जी इज गोल 7. क्लीन एनर्जी इज रिलेटेड विथ ग्रीन कंप्यूटिंग विच इज द टॉपिक टुडे. ओके, क्लीन एनर्जी जो यूनाइटेड नेशंस का एक 17 में से एक गोल है, वो उसी से रिलेटेड आज का अपना टॉपिक है, ग्रीन कंप्यूटिंग. देयर आर 11 बात निकली है तो बता दूं, मोस्टली यू आर स्टूडेंट्स हियर. देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज एज डिफाइंड इन पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा हूं मैं. एक तो होते हैं मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल ड्यूटी विच आर डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4A. प्रिजर्विंग एनवायरमेंट इज ड्यूटी नंबर 7. ये सबकी फंडामेंटल ड्यूटी है. क्या? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना. ड्यूटी नंबर 7 डिफाइंड है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना. पार्ट 4A मीन्स इट इज नॉट मेन, रेदर इट इज एडेड आफ्टर वर्ड्स. लॉ वाले जानेंगे कि पार्ट 4A अगर हम लोग गहराई में जाएं तो कोई अगर पूछे, इसलिए मैं लिख दिया इस लाइन को कि सर ये ए क्या मतलब है, तो ए मतलब है कि बाद में ऐड किया गया, शुरू में नहीं था ये वाला पॉइंट, बाद में ऐड किया गया. सो पार्ट 4A is added by 42nd amendment in 1976. More specifically, Article 51A of Part 4A defines fundamental duties of Indian citizens.
फंडामेंटल ड्यूटीज डिफाइंड हैं, उसमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना अपनी एक ड्यूटी है। नोट दैट फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, more specifically article 32 of part 3 defines fundamental rights. Fundamental rights और fundamental duties दोनों डिफाइंड है, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी अपनी एक फंडामेंटल ड्यूटी है हर इंडियन की। तो कमिंग ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेस लेक्चर, ह्यूमन बॉडी एंड होल यूनिवर्स आल्सो इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। पंच तत्व से बना है शरीर, और पूरी सृष्टि या ब्रह्मांड भी 5 ही तत्व से बना है, जैसे अपना शरीर 5 तत्व से बना है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा पंच तत्व से बना शरीर है। रामचरितमानस में भी लिखा है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा 5 हुए पंच तत्व से बना शरीर। तो ये जो 5 तत्व हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं, आउट ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स एयर एंड वाटर आर मोस्ट पॉल्यूटेड। आप देख रहे हैं इसमें एयर और वाटर 5 तत्वों में लिखा हुआ है, ठीक है, और यही एयर और वाटर बहुत पॉल्यूट हो गया है। एंड 2 मेजर रीजंस बिहाइंड दिस पॉल्यूशन आर, पहला तो वेस्ट, मैं शुरू में ई वेस्ट का थोड़ा सा जिक्र किया था, और दूसरा है कार्बन इमिशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जो वेस्ट है वो 3 प्रकार का होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। अभी आपको एक टेबल दिखाएंगे, उससे समझ में आएगा सबका इम्पैक्ट कितना, इफेक्ट कितना है। तो इम्पैक्ट एनालिसिस ऑफ वेस्ट ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे इन वेस्ट का क्या असर होता है, नॉन सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, सीवियर, 3 प्रकार से हम लोग कैटेगराइज किए इफेक्ट को। तो सबसे पहले देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, फिर देखेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट, फिर देखेंगे इनऑर्गेनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर जैसे हैं एग्जाम्पल, फ्लॉपी, केबल, पावर सप्लाई यूनिट्स, मॉनिटर, लॉजिक बोर्ड्स, कीबोर्ड, पीसीज, टोटल माने सभी का टोटल, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट में कैंटीन वेस्ट, पोल्ट्री, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट, एनिमल ड्रॉपिंग, फूड, फ्लावर, सीवेज, स्लज एक्सेट्रा, ये ऑर्गेनिक में आता है। पोल्ट्री फार्म से जो हो रहा है या कॉलेज की कैंटीन से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो सब क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट। इनऑर्गेनिक वेस्ट पेपर वेस्ट होता है, प्लास्टिक मटेरियल, वुड वेस्ट, मेटल वेस्ट, डिस्कार्डेड फर्नीचर, और ये सब का टोटल बताया गया नीचे। टेबल बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करता है, सीएसआई कम्युनिकेशन मैगजीन से लिया गया है ये। इन वेस्ट का क्या इफेक्ट है ह्यूमन पर, एनवायरनमेंट पर, एग्रीकल्चर पर, एयर पर, लैंड पर, वाटर पर, ये टेबल दिखा रहा है। तो नॉन सिग्निफिकेंट मीन्स 1 माने नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब कि लिस्ट इफेक्ट है, माने कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इग्नोरेबल है, निग्लिजिबल है। तो फ्लॉपी का ह्यूमन, एनवायरनमेंट जो पुराने समय में होती थी, फ्लॉपी, एयर, ये सब पर बहुत कम इफेक्ट है। चलिए ठीक है। केबल का इफेक्ट, जो हम लोग केबल यूज करते हैं, लाइन केबल रहता है, फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, तो वो सब का इफेक्ट भी बहुत कम है। पावर सप्लाई रहती है, एसएमपीएस रहती है, स्विच मोड पावर सप्लाई, और कंप्यूटर में, तो ये सब का इफेक्ट भी ज़्यादा नहीं है। मॉनिटर लेकिन जो अपने यूज होता है उसका इम्पैक्ट देखिए ह्यूमन पर 3 मतलब सीवियर। मॉनिटर इज वेरी हजार्डस। एनवायरनमेंट पर भी उसका इफेक्ट 3 माने सीवियर है, ठीक है। एग्रीकल्चर वगैरह पर भी दिया हुआ है। वैसे लॉजिक बोर्ड, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, पीसीबीज, उनका भी इफेक्ट बहुत हार्मफुल है ह्यूमन के लिए, और सभी चीज पर, एयरलाइन वगैरह पर भी दिया है। कीबोर्ड का क्या इफेक्ट है, ओवरऑल पीसी का क्या इफेक्ट है, 3 है। 3 माने सीवियर, देख लीजिए, एनवायरनमेंट और ह्यूमन पर 3 है। और कुल मिला के आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कितना इफेक्ट है, 13 पॉइंट है। ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा सीवियर है। एनवायरनमेंट पर भी बहुत है,
एग्रीकल्चर, एयर, लैंड, वाटर पर भी 7 पर है। माने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज वेरी मच हार्मफुल एज कंपेयर टू अदर वेस्ट। कैसे? ऑर्गेनिक वेस्ट में देखिए आप, जो कैंटीन से निकलता है वेस्ट, उसका इफेक्ट बहुत कम है। भले ही आपको लगेगा यार ये गंदा दिख रहा है, इतना वेस्ट पड़ा हुआ है, लेकिन उसका इफेक्ट अपने हेल्थ पर बहुत कम है। पोल्ट्री का लगेगा इतनी स्मेल आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कमी हार्मफुल है। फूड प्रोसेसिंग वेस्ट, एनिमल ड्रॉपिंग, फूड, फ्लावर, सीवेज, ये सब का कुल मिला के ऑर्गेनिक वेस्ट का इफेक्ट 7 है केवल ह्यूमन पर और एनवायरनमेंट पर, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कितना इफेक्ट था? 13 था, माने ऑलमोस्ट हाफ है। इनऑर्गेनिक वेस्ट की बात करें तो ये और भी कम है। पेपर, हम लोग जो पेपर यूज करते हैं फेंकते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, वुड, मेटल, ये सब फेंकते हैं, तो ये सब का इफेक्ट भी 5 पर है। टोटल दिख रहा है 5, माने बहुत ही कम है। तो कहने का ये मतलब है 3 प्रकार के वेस्ट हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज मोस्ट सीवियर एंड डेंजरस एंड हजार्डियस। ये टेबल से आपको बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक और ग्राफ बना हुआ है, इम्पैक्ट रेटिंग वर्सेस इम्पैक्ट ऑन वेस्ट कैटेगरी। उसी चीज को ग्राफिकल फॉर्म में बताया गया है और कुछ नहीं है। जैसे ह्यूमन पर ये जो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट माने ब्लू कलर की जो ग्राफ है या लाइन है, ऑर्गेनिक माने इस तरह का ऑरेंज है, ग्रीन माने इनऑर्गेनिक है। तो आप देख रहे हैं इनऑर्गेनिक सबसे कम है, ऑर्गेनिक उससे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सबसे ज्यादा है ह्यूमन एनवायरनमेंट पर, 13 पॉइंट पर है, और बाकी सब पर भी इफेक्ट दिख रहा है, एग्रीकल्चर, एयर, लैंड, वाटर। क्लियर? ये आपको इफेक्ट दिख रहा है वेस्ट का। तो दिस ग्राफिकल एनालिसिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैज मोस्ट सीवियर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। E-waste has most severe impact on human and environment. So according to the table, effect of electronic waste is most, and electronic waste contains hazardous materials like lead, mercury, cadmium, phosphorus, powder, barium and black carbon. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ये सब चीजें रहती हैं, लेड, मरकरी, कैडमियम वगैरह, black carbon, and therefore e-waste can cause serious diseases like cancer. India alone generates around 4 million ton of e-waste each year. 4 million ton of e-waste is generated only in India, and in next 10 years India's e-waste is likely to become 18 times. आप सोच सकते हैं माने कितना ज्यादा हम लोग डेंजर जोन में। 10 years में ये 18 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये CSI कम्युनिकेशन में लिखा था जनवरी 2011, पेज 11। अब तो कितना हो चुका होगा। न्यू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आर कमिंग अप इन द मार्केट एंड ओल्डर आर गेटिंग डम्प्ड। जैसे पीसी है 5-6 या 10 साल में ज्यादा से ज्यादा आप चेंज कर देते हैं, लैपटॉप, मोबाइल चेंज कर देते हैं, तो पुराना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट क्या हो रहा है? डंप हो रहा है। Only in Bangalore, around 30,000 computers are dumped each year. तो इसका अभी तो प्रॉब्लम बताए, सॉल्यूशन ये हो सकता है कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल आर दी 3 possible solutions to be, and therefore this to be promoted. Reduce the use of electronic material. चलिए आप बोलेंगे हम रिड्यूस कैसे करें, तो फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन करें कि रीयूज करें। जो खराब हो गया, आउटडेटेड हो गया, राइट ऑफ हो सकता है, तो उसको हम लोग रीयूज करें, रिसाइकिल करें। एंड फॉर दैट मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नीडेड टू ब्रिंग न्यू रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज। इसलिए जरूरत है इस चीज की कि रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी आए वर्ल्ड में, इंडिया में, जो कि रिसाइकिल कर सके। वही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, रिसाइकलिंग। एक कहीं से मिला था, मैं इसको लिखा, प्लांटेशन कितना है,
इंडिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूएसए, रशिया में पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? पॉपुलेशन दी हुई है, देख लीजिए, आप देख लीजिए कितना डिफरेंस है पॉपुलेशन का। 1.33 बिलियन है इंडिया में, तो 0.20 आप सोच लीजिए कहाँ है। कनाडा का 0.03, चाइना का चलिए लगभग बराबर है, यूएसए का 0.3 पर है, इंडिया का 0.3 है, 1.3 है तो यूएसए का 0.3 है। आप सोच लीजिए रशिया का 0.14 है। तो पॉपुलेशन इंडिया में कितनी ज्यादा है। और नंबर ऑफ ट्रीज आप देखिए कंपेयर करके, इंडिया में 35 बिलियन बस, ब्राजील में 301, 318 और रशिया में तो 641 बिलियन ट्रीज है। और नंबर ऑफ ट्रीज पर पर्सन आप देखेंगे तो इंडिया में अगर 26 है तो रशिया में 4435 है, कनाडा में तो 8580 है। ट्रीज इंडिया में, इंडिया की तो सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है बिकॉज ओनली ऑफ पॉपुलेशन। और इस तरफ पॉलिसी मेकर को ध्यान देना चाहिए, इतना ही मैं कहूंगा बस। पॉपुलेशन इन द ईयर 2017-18, ये जो पॉपुलेशन बताया गया वो 17-18 का है। एंड देयरफॉर देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ प्लांटेशन इन इंडिया। प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इंडिया में। हम लोग को अभी अपने घरों के आसपास प्लांट्स लगाने चाहिए, घर में और घर के बाहर भी, जहाँ ऑफिस है वहाँ भी लगाना चाहिए, कार्यस्थलों पर लगाना चाहिए, स्कूल कॉलेज में लगाना चाहिए। ये अपने जॉब के अलावा है, अपनी ड्यूटी है। इंडिया इज द बिगेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर एंड देयरफॉर वी शुड प्रिजर्व ग्राउंड वाटर आल्सो। ग्राउंड वाटर इतनी तेजी से कम हो रही है, अभी गर्मी आ रही है, पानी का लेवल डाउन हो रहा है। ये ग्राउंड वाटर भी एक समय आएगा कि खत्म ही हो जाएगा या आपके पंप से ही नहीं आएगा। तो हम लोग को वाटर को भी सेव प्रिजर्व करना चाहिए। तो 6 gases contribute towards carbon emission. There are 6 gases which contribute towards carbon emission. These 6 carbon emission आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन carbon emission how it is composed of? So there are 6 gases: carbon dioxide, nitrous oxide, methane, hydrofluorocarbon, HFCs, perfluorocarbon, sulfur hexafluoride, and these are the 6 greenhouse gases. These are called greenhouse gases, ही इनका नाम दिया गया है। And greenhouse gas emission by IT sector in world is 3 to 4%, which is likely to grow to 6% by 2020। ये थोड़ा पुराना डाटा अब तक हो गया होगा। 3 to 4% या आप 6% मान लीजिए कि इतना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इन IT सेक्टर कार्बन एमिशन इज एज अंडर PC एंड मॉनिटर। माने आप समझ लीजिए कि टोटल ये जो 6 गैसेज हैं जो वातावरण में इमिट हो रही हैं, उनका 6% IT ही के कारण होता है। ऐसा नहीं कि बड़ी चिमनी वाली इंडस्ट्री के कारण ही हो रहा है पॉल्यूशन। ठीक है, आप आज कह सकते हैं आज बहुत ज्यादा नहीं है, 6% है, 10% से कम है। अच्छा ठीक है, IT के अंदर में किससे हो रहा है? तो PC एंड मॉनिटर जो मैं बताया था 3 होता है, माने सीवियर में है। PC का भी मॉनिटर का वो 39% इम्पैक्ट है, ये 6% के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिंटर का 6% है, लैंड एंड ऑफिस टेलीकॉम 7 है, मोबाइल टेलीकॉम 9 है 9%, फिक्स टेलीकॉम जो लैंडलाइन टेलीफोन है 15% है, सर्विसेज 24% है। पेज 12 CSI कम्युनिकेशन जो जनवरी 2011 से लिया गया है। ये पाई चार्ट में भी यही चीज दिखाई गई है। तो कार्बन emission is measured in terms of what is called carbon footprint and amount of carbon dioxide in kilogram or ton released into atmosphere
by an activity or a person or office over a period of time, usually a year, is called carbon footprint. माने कितने किलो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ एटमॉस्फेयर में, वही कार्बन फुटप्रिंट है एक पर्टिकुलर टाइम में. तो कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट, प्रोडक्ट, पर्सन. कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन ग्रीन हाउस गैसेज ही कहें, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का है. तो हम लोग अब कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड यूज कर रहे हैं. कार्बन इमिशन माने कार्बन डाइऑक्साइड ही हम लोग रफली एज्यूम कर सकते हैं. अगर मान लिया जाए बाकी गैसेज इनसिग्निफिकेंट हैं, कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में बी ड्यू टू मे बी फ्रॉम ए ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट, जैसे कोई ये राज्योत्सव वाला मेला लगता है या कोई और भी इवेंट होता है, बड़ा इवेंट. कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माने आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, और इनफैक्ट इन टोटल एज ए पर्सन आपसे भी कार्बन इमिशन होता है. तो ये सभी कारक हैं कार्बन इमिशन के, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट, प्रोडक्ट, पर्सन. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, प्राइमरी फुटप्रिंट, सेकेंडरी फुटप्रिंट. और प्राइमरी फुटप्रिंट के अंदर है डायरेक्ट इमिशन, और एमिशन माने मतलब है एमिशन बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. और सेकेंडरी फुटप्रिंट का मतलब है इनडायरेक्ट एमिशन, दैट इज एमिशन बाय मैन्युफैक्चरिंग, एमिशन बाय ट्रांसपोर्ट, एमिशन बाय पैकेजिंग एटसेट्रा. तो दो तरह के कार्बन फुटप्रिंट बताए गए हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट एमिशन से. अब एक ज्वलंत जो क्वेश्चन है वो आपको आंसर मैं दूं कि आप सोचेंगे भाई लैपटॉप मोबाइल हम घर में यूज कर रहे हैं, तो इससे तो कहीं दिख नहीं रहा है कि कोई धुआं निकल रहा है, ऐसा आपको लग सकता है. तो ये कैसे कार्बन इमिशन कैसे कर रहा है? तो होता ये है कि जैसे छत्तीसगढ़ है, तो आपको मालूम है कोरबा में थर्मल पावर प्लांट है. कोरबा से इलेक्ट्रिसिटी रायपुर, छत्तीसगढ़ या बिलासपुर या कहीं भी जाती है. जनरेटिंग पावर प्लांट कहाँ पे जनरेट कहाँ होता है? कोरबा में. वहाँ एनटीपीसी है का ऑफिस है, पूरी फैक्ट्री है, पूरे जनरेशन यूनिट है. और वहाँ पे कोल बर्न करके ये कोल बर्न करके ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, फिर ट्रांसमिट की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है कोरबा में, जिससे कि हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन किया जाता है. हम लोग ट्रेन से जाते हैं, देखते हैं बड़े बड़े बिजली के टावर लगे हैं, उन्हीं को ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं. वहाँ से फिर ये रायपुर बिलासपुर तक आती है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है रायपुर में गुड़ियारी में, वहाँ पे वोल्टेज डाउन किया जाता है, और फिर घरों तक सब स्टेशन, जैसे पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर बोलते हैं, आप लोग के घर के बाहर में भी पोल पर ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, वहाँ से होता हुआ घरों तक लाइट आती है. ये पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, ये फीडर कहा जाता है, घर में जो अपने लाइट आती है. ये आपके घर में ये कंप्यूटर चल रहा है. तो अल्टीमेटली कंप्यूटर चलने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आ कहाँ से रही है? वो कोरबा से आ रही है. इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी स्टोर्ड. जैसा वाटर है, ऑयल है, आप बड़े बड़े टैंकर में स्टोर कर सकते हैं. वाट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी स्टोर्ड. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड राइट एट द टाइम ऑफ यूज. ये सबसे बड़ी खासियत है इलेक्ट्रिसिटी की. तो इस तरह से कोरबा में ये जो कोल बर्न किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वही इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं बिना स्टोरेज के. कह सकते हैं बैटरी में स्टोरेज होती है, ठीक है, लेकिन ये पूरे इसमें जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें तो नहीं होता है. तो इस तरह से CO2 इमिशन कहाँ पे हो रहा है? कोरबा में हो रहा है. आप जो यहाँ पे लैपटॉप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो CO2 इमिशन कहाँ हो रहा है? कोरबा में हो रहा है. तो आपको भले ही कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है, जो कि अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर ही में जा रहा है.
Now coming on role of green computing. Green computing can effectively control pollution level. पॉल्यूशन लेवल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ग्रीन कंप्यूटिंग से. लेट अस सी हाउ. तो लेट अस सी व्हाट इज ग्रीन कंप्यूटिंग. ग्रीन कंप्यूटिंग इज द एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड सोर्सेज. एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल यूज माने हम लोग एनवायरमेंटली अपने को रिस्पॉन्सिबल समझे पहले तो, और उसके अनुसार कंप्यूटर यूज करें. Such practices include the implementation of energy efficient central processing units, CPUs. CPU ऐसा मैन्युफैक्चर हो जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो, सर्वर्स एंड पेरिफेरल्स, as well as reduced resource consumption and proper disposal of electronic waste. तो इन सब का हम लोग यूज भी कम करें और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो जनरेट हो रही है उसका डिस्पोजल करें. In our country, where energy is a scarce commodity, we need to promote green computing. जहाँ हम लोग के एनर्जी का ऐसे ही शॉर्टेज है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, हेवी पॉपुलेशन, तो वहाँ पे हम लोग को ग्रीन कंप्यूटिंग को प्रमोट करना चाहिए in order to preserve electricity and energy, electrical energy, which is very precious one. Energy efficient devices will produce less carbon emission according to previous diagram. माने कि आपको जो मैं डायग्राम दिखाया अभी अभी जनरेटर वाला, उसमें आपको समझ में आएगा कि अगर आप कम एनर्जी का यूज करेंगे तो कम कोल बर्न होगा, कम कोल बर्न होगा तो कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी. इस तरह से एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस विल प्रोड्यूस लेस कार्बन इमिशन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डायग्राम. तो कमिंग ऑन एनर्जी अवेयरनेस, तो आपको छोटा सा कैलकुलेशन करके बताएंगे कि एनर्जी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे. माने योर लैपटॉप मोबाइल ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. स्मॉल डिवाइसेज हैं. अवेयरनेस अबाउट एनर्जी इन सराउंडिंग इज प्रीरिक्विजिट फॉर ग्रीन कंप्यूटिंग. आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि आप लोग कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं लैपटॉप मोबाइल में. फॉर एग्जाम्पल द मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी, बल्ब, फैन एटसेट्रा which we are using, how much energy these equipments are consuming and how much wasting. माने आप कितना वेस्ट कर रहे हैं और कितना यूज कर रहे हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए. तो एमिशन फैक्टर इज 0.85. दैट इज एमिशन फैक्टर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये डाटा लिया हुआ है स्टैंडर्ड सोर्स से, वो है 0.85. इसका मतलब है 0.85 kg ऑफ CO2 per kilowatt hour is generated. This is the source from where I have taken 0.85. आप पूछेंगे कहाँ से आप लिए हुए, तो मैं बता रहा हूँ सोर्स भी आपको. ISO ये है सोर्स और ये डाटाबेस है एमिशन फैक्टर का. CEA सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो 0.85 दी है. चेक कर सकते हैं ये डाटाबेस से. तो मतलब 0.85 kg ऑफ CO2 पर किलोवाट आवर इज जनरेटेड. आप पूछेंगे भाई पर किलोवाट आवर, जो आपको मालूम है आपके घरों में बिजली एनर्जी मीटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन का मेजर करने के लिए बाहर में एक मीटर लगा रहता है, उसका पूरा नाम होता है एनर्जी मीटर. उसमें यूनिट, कितनी यूनिट कंज्यूम हुई वो आके CSCB से नोट कर जाता है. तो एक्चुअली यूनिट क्या चीज है, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स वगैरह में, थ्योरी में. ये किलोवाट आवर होती है. किलोवाट आवर, एक घंटे में कितने किलोवाट यूज किए. अगर एक घंटे में आपने 2 किलोवाट यूज किया तो 2 किलोवाट आवर माने 2 यूनिट यूज किया. और आप जानते हैं बल्ब जैसे 60 वाट का होता है, हर एक का कुछ ना कुछ वाटेज होता है. तो उससे आप अपने आप से किलोवाट आवर या यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने यहाँ का, जो कि मीटर में ऑटोमेटिक आता है. फॉर एग्जांपल मेरा ये पुराने फ़ोन की बात कर रहा हूँ, उस समय स्मार्टफोन नहीं था, पुरानी बात है. तो उसमें मैं डाटा नोट किया था. उसमें ये था कि 3.7 वोल्ट की बैटरी थी, 860 मिली
एम्पियर आवर उस पे रेटिंग लिखी हुई थी एंड 3.2 वाट आवर लिखा हुआ था। आपकी बैटरी पर ये रेटिंग दी होती है कि कितने वाटेज का है, कितने वोल्ट का है, कितने एम्पियर का है, वो दिया रहता है। उससे उसी लिखे हुए को मैं नोट किया और उससे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अपनी स्मॉल जो पहले आता था 2G वाला मोबाइल, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 3.7 इंटू 0.860 एम्पियर आवर, तो उससे आता था 3.182 वाट आवर। जैसे मैं कैलकुलेशन बताया था ऊपर 2 किलोवाट आवर वाला, यहाँ पे इतना वाट आवर आ गया। उसको आपको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब यूनिट में कन्वर्ट होगा, तो 0.0032 यूनिट आई। और उसमें आप एमिशन फैक्टर कर दें 0.85, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिफाइंड है, तो आता है 0.00272 kg ऑफ CO2। ये जो मेरा स्मार्टफोन नहीं था उससे इतना इमिट होता था, 0.00272 1 आवर में। आप बोलेंगे कितने समय में? 1 आवर में। किलोवाट आवर है ना, इसलिए। क्लियर? तो अगर एक बल्ब की बात करें जो येलो कलर का की लाइट वो देता है, वो 60 वाट का बल्ब होता है जनरली, तो वो 0.060 किलोवाट आवर 1 घंटे में कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि 60 वाट है। 60 वाट माने 0.060 किलोवाट, और 1 आवर आप ले लीजिए, तो 0.60060 किलोवाट आवर 1 यूनिट हुई। 1 घंटा अगर वो पीला वाला बल्ब जलेगा तो वो 0.060 यूनिट लेगा, और उसमें 0.85 मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 51 ग्राम। 51 ग्राम of CO2 is emitted by that small bulb, 60 watt bulb, in 1 hour. 51 gram CO2 is emitted by burning small bulb. ट्यूबलाइट जो होती है हम लोग के घरों में 40 वाट की रहती है, उससे 0.040 किलोवाट आवर आप कर दीजिए। माने उसको पहले आप किलोवाट में चेंज करिए, 1 आवर हम लोग मान रहे हैं तो 1 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी 0.85 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.0340, मतलब 34 ग्राम ऑफ CO2 इज एमिटेड बाय ट्यूबलाइट इन 1 आवर। फैन जो होता है वो 80 वाट का होता है, तो उसका भी कैलकुलेशन यहाँ कर दिए, जो कि 68 ग्राम पर आवर एमिट करेगा। अगर लैपटॉप की बात करें, जो मेरा लैपटॉप है इस समय तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन लैपटॉप से अगर ये करें तो जो लैपटॉप की बैटरी है, मेरे पास जो लैपटॉप है उसकी बैटरी पर लिखा हुआ है 10.8 वोल्ट 4090 मिली एम्पियर आवर 47 वाट आवर। ठीक है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। जो 47 वाट आवर है इसको जस्ट किलोवाट आवर में चेंज कर दिए और 0.85 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो आया कितना? 0.03995 किलोग्राम ऑफ CO2 इज एमिटेड इन एटमॉस्फेयर इन 1 आवर। ये मतलब हुआ approximately 0.04 kg of CO2 is emitted in 1 hour from my laptop, माने around 40 gram of CO2 is emitted, and therefore अगर मैं अपने लैपटॉप को, या आप माने कि अगर 2 घंटे का मैं लेक्चर दूं लैपटॉप से, तो आप समझ सकते हैं कि 80 ग्राम CO2 एमिट हुआ मेरे लैपटॉप से, आप ऐसा मान सकते हैं। इस तरह से आप उसको आप ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पाएंगे कि अगर 1 घंटा मैं रोज यूज कर रहा हूँ लैपटॉप को, तो 1 साल में 14.6 किलो CO2 विल बी एमिटेड। वैसे जो पीसी है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें 90 वाट आवर होता है, और ऑन फुल लोड एवरेज कंजम्पशन इज 300 वाट। पीसी पर 300 वाट होता है, और एट नो लोड 150 वाट होता है। नो लोड और फुल लोड वैसे ही है जैसे आप मोटरसाइकिल चलाएं और अकेले चला रहे हैं, और एक है कि 2 लोग बैठे हैं, तो 2 लोग बैठे हैं तो आप मान लीजिए फुल लोड है,
अकेले हैं तो आप उसको मान सकते हैं कि हाफ लोड है, मान सकते हैं। तो नो लोड माने पीसी ऑन जस्ट है और उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो उस समय 150 वाट वो यूज करेगा। और इफ कंप्यूटर इज ऑन विदाउट वर्क देन 150 वाट आवर एनर्जी इज emitted और वेस्टेड पर आवर। 150 वाट आवर, हमेशा आवर जुड़ा हुआ यूनिट में, तो 0.150 एंड देयरफॉर 0.85 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आता है 127.50 ग्राम। आपका कंप्यूटर केवल जस्ट ऑन है बिना वर्क के, तो 127 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग emitted each hour. Suppose computer remains on without work for 1 hour daily. अब रोज आप सोच लीजिए कि 1 घंटा बिना काम के वो ऑन है, देन इन 1 ईयर 365 into 0.1275 माने 146 kg of CO2, 146 किलो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इमिटेड इन 1 ईयर। अगर 1 घंटा आप कंप्यूटर को बिना काम के ऑन रखें तो गवर्नमेंट ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस में आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे कंप्यूटर ऑन है, तो उससे कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है आप सोच सकते हैं। ICT sector consumes around 40% of energy produced in the world, and by 2030 it is expected to grow up to 50%. ICT sector तो जो इलेक्ट्रिसिटी अभी वो यूज करती है वो 14-15% ही है, लेकिन 2030 तक इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी ICT पर कि वो हो जाएगा लगभग 50%। This is the expectation at present, and the reference of this data is like this. यहाँ से लिया हुआ है, इनका पेपर है वहां से लिया हुआ है, ये वाला 50% वाला डाटा। Therefore, energy saving can be done in 2 ways. We have to save energy, and therefore energy saving can be done in 2 ways, by technology and by practice. Practice माने एनर्जी वेस्टेज को हम लोग मिनिमाइज करें, और बाय टेक्नोलॉजी 2 प्रकार से किया जा सकता है। तो एनर्जी सेविंग कैन बी इफेक्टेड थ्रू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो कैसे, टेक्नोलॉजी के अंदर फिर से हो गए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर मीन्स बेटर एल्गोरिथम्स एंड प्रोटोकॉल्स। हम लोग जो एमटेक PhD ये सब करते हैं तो आप देखते हैं कि हमने एक नया एल्गोरिथम बनाया, तो मैं अपने रिसर्च स्कॉलर को बोलता हूं कि आप एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करिए। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कंप्लीट ही नहीं माना जाएगा। तो क्या, हाउ मच कॉम्प्लेक्स योर प्रोग्राम इज, तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम हो रही है तो फिर माने उसका इम्प्लीमेंटेशन इजी हो रहा है, कंप्यूटर को वर्क कम करना पड़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन भी कम हो रहा है। वैसे हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी भी कम करनी है, तो हार्डवेयर मींस बेटर आर्किटेक्चर एंड न्यू मटेरियल्स। बोथ आर्किटेक्चर इज रिक्वायर्ड टू बी इम्प्रूव्ड, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज टू बी इम्प्रूव्ड, एंड एट द सेम टाइम मेटलर्जिकल इंजीनियर्स का वर्क है वो नए ऐसे मटेरियल लाएं जिनका की जो है इलेक्ट्रिकल RLC माने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सब कम हो, जिससे कि इम्पीडेंस कम ऑफर करें, उनका वो बैंडविड्थ अधिक ऑफर करें। ऐसे मटेरियल की खोज होनी चाहिए, इन्वेंशन होना चाहिए। अभी आई प्रेजेंट कॉपर इज सपोज टू बी द बेस्ट मटेरियल विच इज वेरी कॉस्टली आल्सो, बट कॉपर इज सपोज टू बी दैट मीन्स एवरीवेयर यूज। तो और कोई बेटर मटेरियल खोजें, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इट ऑफर्स वेरी हाई बैंडविड्थ आल्सो। कॉपर वायर का यूज होता है। तो टेक्नोलॉजी, तो बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट a 60 watt bulb gives same light as 40 watt ट्यूब लाइट। अब ये एकदम कॉमन लोग भी सोच सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। जो पुराने समय का 60 वाट बल्ब होता था
उतनी लाइट 40 वाट की ट्यूबलाइट देती है, एंड द सेम अमाउंट ऑफ लाइट इज emitted by 15 वाट ऑफ CFL, एंड सेम लाइट इज emitted by 8 वाट LED। अब बताइए, जो 60 वाट का बल्ब देता था 8 वाट की LED दे रही है, तो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही है। लाइट उतनी ही मिल रही है हम लोगों को, लाइट जितनी सफिशिएंट है 60 वाट बल्ब से मिलती है उतनी ही मिल रही है, हम लोग रात में पेपर पढ़ सकें, इतना है। तो 8 वाट LED से भी उतना ही मिल रहा है। तो 1 वाट CFL gives 50 to 60 luminescence, 1 watt LED lamp gives 100 to 130 luminescence, एंड माने आप देख लीजिए कि लाइट LED कितना ज्यादा देता है CFL की अपेक्षा, 100 माने 2 टाइम्स देता है। CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, इट कंटेन्स गैस, LED कंटेन्स सॉलिड, देयरफॉर LED लैम्प इज मोर इको फ्रेंडली। LED जो होता है वो इको फ्रेंडली भी ज्यादा है और कम वाटेज में ज्यादा लाइट दे रहा है, तो हर तरफ से फायदा है LED बल्ब। तो इस तरह से है, लाइफ वाइज भी देखें तो ये कमोडिटी 1000 वाट का बल्ब पुराने समय का, इसकी लाइफ 1500 हावर है और कॉस्ट है 50 रुपीज। 1000 नहीं होना, ये 50 होना चाहिए था, 1000 लिखा गया है। एक मिनट, ये 100 वाट होना चाहिए, 1000 लिखा गया। 60 वाट CFL, ये 5000 आवर लाइफ है और 300 इसकी कॉस्ट है। 20 वाट LED केवल 100 वाट के ऑर्डिनरी बल्ब के बराबर है, वो 50,000 आवर है। लाइफ भी देखिए इसकी ज्यादा है, लेकिन ऑफ कोर्स इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। इंडक्शन लाइट और अच्छी होती है, 80,000 आवर है और 1800 उसकी कॉस्ट है। ये जरूर है कि कॉस्टली होता जाता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है वो चीज जो है कॉस्टली भी हो रही है। इसीलिए लोग अभी भी 60 वाट बल्ब प्रिफर करते हैं, क्योंकि वन टाइम कॉस्ट वो 30-40 रुपए में आ जाता है। जो इधर 1000 लगेगा तो कोई सोचेगा यार मैं 30-40 रुपए का ले लूं, देखा जाएगा लाइफ कम है, एमिशन ज्यादा है, वो बात की बात है। तो ये थोड़ा सा अपने को कॉस्ट रिडक्शन पर भी सोचना पड़ेगा। इंडक्शन लाइट इज यूज्ड इन मोवा ब्रिज ऑफ रायपुर, रायपुर में मोवा ब्रिज है, वहां पे यूज किया गया है। इंडक्शन लाइट इज जनरली यूज्ड फॉर हेवी ड्यूटी पर्पसेस एंड करंट इज इंड्यूस्ड इन एन एक्सटर्नल कॉइल बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर की वर्किंग का। तो इंडक्शन के थ्रू इंडक्शन लाइट जलती है। इंडक्शन माने एक अगर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसमिटेड, यही होता है ट्रांसफार्मर में। 40 वाट इंडक्शन लाइट इज इक्विवेलेंट टू 150 वाट ऑफ हेलोजन लैम्प। तो इस प्रकार से सिमिलरली वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर आईसी के अंदर लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल दोनों, माइक्रो प्रोसेसर एंड मल्टी प्रोसेसर हम लोग जो पढ़ते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग में, पाइपलाइनिंग are all the examples of technological development leading to saving of electrical energy. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब था, फिर सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, फिर आईसी आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया, फिर मल्टी प्रोसेसर है, मल्टी और पाइपलाइनिंग भी है। पाइपलाइनिंग इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू अचीव पैरेललिज्म। तो ये सब एडवांस स्टडीज हैं जो कि हम लोग कंप्यूटर साइंस में पढ़ाते हैं। तो ये सब के कारण क्या हुआ कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव हो रहा है। हर जगह अल्टीमेटली वही आता है कि एनर्जी सेविंग होती है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है और इलेक्ट्रिकल पावर सेव होता है। सीपीयू पावर की बात करें, अकॉर्डिंग टू मूरेज लॉ, मूरे वाज ए वेरी फेमस साइंटिस्ट, number of transistors in integrated circuits
gets approximately doubled in every 2 years. और आश्चर्य की बात है कि मोरे ने ये फॉर्मूला बहुत साल पहले दिया था, थोड़ा मैं लिखा तो नहीं हूँ कि कब दिया था, मिल जाएगा आपको। तो लेकिन वो केवल 10 साल के लिए उन्होंने दिया था, मान लीजिए 1970 में दिया था, तो केवल 10 साल के लिए दिया था, लेकिन उनका फॉर्मूला आज भी वैलिड है इतने सालों के बाद। और उस फॉर्मूला के अनुसार क्या है कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन इंटीग्रेटेड सर्किट गेट्स डबल्ड इन एवरी 2 years। माने कि जितने ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जो होती है वो कैसे बनती है, वो ट्रांजिस्टर से मिलाकर बनती है। तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है, एंड देयरफॉर मोर हीट इज डिसिपेटेड एंड सीपीयू कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड डिसिपेट्स इन फॉर्म ऑफ हीट due to I²R loss. CPU consumes electrical energy and dissipates in form of heat due to I²R loss. क्या होता है कि जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स रहेंगे, ट्रांजिस्टर को मिलाकर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी बन रही है, और जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे उतने ही ज्यादा करंट कंजम्पशन रहेगा, और जितने ज्यादा करंट कंजम्पशन रहेगा, I²R लॉस, कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस या I²R लॉस, एक आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है। तो कॉपर लॉस इज वेरी सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब अगर 2 एम्पियर से करंट 4 एम्पियर हो या 4 एम्पियर हो गई, तो I²R के कारण वो 16 टाइम्स, 2 टाइम्स अगर बढ़ रही है तो उधर 4 टाइम्स लॉस बढ़ जाएगा I²R लॉस होने के कारण। तो कॉपर लॉस और I²R लॉस इज वेरी सिग्निफिकेंट। करंट अगर 2 टाइम्स होती है तो कॉपर लॉस 4 टाइम्स बढ़ता है। तो जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर है उतनी ज्यादा करंट है, उतनी ज्यादा कॉपर लॉस है, माने हीट लॉस है। तो हीटिंग है, I²R लॉस माने हीटिंग। तो सीपीयू पावर इज कंपोज्ड ऑफ, सीपीयू जो पावर ड्रॉ करता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ डायनेमिक पावर प्लस शॉर्ट सर्किट पावर प्लस लीकेज पावर। 3 तरह के पावर होते हैं, एक होता है डायनेमिक पावर, एक शॉर्ट सर्किट पावर, एक है लीकेज पावर। तो पावर सीपीयू इज पी डायनेमिक, शॉर्ट सर्किट एंड लीकेज पावर। तो डायनेमिक पावर consumed by a CPU is given by the formula P is equal to CV²F। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, मैथमेटिकल है लेकिन आपको समझना चाहिए। डायनेमिक पावर इज, जो सीपीयू अपना डायनेमिक पावर लेता है वो क्या होता है, P is equal to CV²F, where C is capacitance, V is voltage and F is frequency। माने कैपेसिटेंस इंटू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज इंटू फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज जो सप्लाई की गई 220 वोल्ट वही है, कैपेसिटेंस हर चीज की कुछ ना कुछ होती है, और फ्रीक्वेंसी माने 50 हर्ट्ज होता है जो घर की इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी। तो व्हेन लॉजिक गेट toggles, some transistors inside it change data state, and when a transistor is conducting, then direct path exists between source and ground, and this gives rise to short circuit power loss। मैं ट्रांजिस्टर की क्लास अलग से लेता हूँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, उसमें ट्रांजिस्टर की वर्किंग मैं बताया करता हूँ। तो एक तो है लॉजिक गेट इज कंपोज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, और जब जब स्टेट चेंजेस होते हैं 0 से 1, 1 से 0, तब तब पावर एमिशन होता है या पावर कंजम्पशन रहता है। जैसे कि ट्रेन जा रही है रायपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से उसको चेंज करना है, कटनी लाइन में जाना है कि इधर राउरकेला लाइन में जाना है, तो उसको, या स्विच होता है, जब वो ट्रेन चल रही है तो उसको ज्यादा एनर्जी नहीं लग रही है, जब जब ट्रैक चेंज करना है तब उसको कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। वैसे ही लॉजिक गेट है, एक स्टेट में बना हुआ है तो ठीक है, लेकिन जब जब स्टेट चेंज करेगा तब तब पावर डिसिपेट होगा। तो व्हेन लॉजिक गेट टॉगल्स, टॉगल्स माने स्टेट चेंज होती है, सम ट्रांजिस्टर्स इनसाइड इट चेंज स्टेट, एंड व्हेन ए ट्रांजिस्टर इज कंडक्टिंग देन डायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट। जब वो
ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है, ट्रांजिस्टर के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, तब डायरेक्ट पाथ होता है बिटवीन सोर्स एंड ग्राउंड, एंड दिस गिव्स राइज टू शॉर्ट सर्किट पावर लॉस. The magnitude of this power is difficult to model, but when transistor is in reverse bias, that is in off state, then also some current flows. This current is called leakage current. माने कहने का मतलब ट्रांजिस्टर एक तो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, एक रिवर्स बायस में वर्क करता है. फॉरवर्ड बायस माने कंडक्टिंग कहलाता है और रिवर्स बायस माने ऑफ कहलाता है. यहाँ ये बताया जा रहा है कि रिवर्स बायस में है, ऑफ है, उसके बावजूद थोड़ी सी लीकेज करंट फ्लो होती है. ऑफ है ट्रांजिस्टर तब भी थोड़ी सी करंट फ्लो होती है, उसको कहा जाता है लीकेज करंट. एंड दिस करंट इज वेरी स्मॉल. और शॉर्ट सर्किट जो पावर थी जो फॉरवर्ड बायस में, वो डिफिकल्ट टू मेजर है, मॉडल है. तो दिस ये लिखा हुआ है, both dynamic power and short circuit power are dependent on clock frequency, while leakage current जो reverse bias में flow हो रही है is dependent on CPU supply voltage. It has been shown that energy consumption of a program, जो हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, shows convex energy behavior, meaning that there exists an optimal CPU frequency at which energy consumption is minimum. माने CPU फ्रीक्वेंसी जो रहती है, अब CPU फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आप सोच सकते हैं जैसे 2 गीगाहर्ट्ज क्या आप प्रोसेसर लिए, तो यही 2 गीगाहर्ट्ज यही इसकी फ्रीक्वेंसी है CPU. और अब अगर डिटेल में ब्लैक बोर्ड पर मैं बताता तो बता पाता, जैसे जैसे आपका ये क्लॉक पल्स रहता है, each and every work is performed on each and every clock pulse. Each and everything is synchronized with clock pulse, and that is same as frequency. जैसे जैसे आप फास्टर क्लॉक पल्स वाली कोई भी कंप्यूटर या प्रोसेसर परचेज करेंगे, रेट उसके बढ़ते चले जाते हैं बहुत तेजी से, क्योंकि आप कहते हैं कि हम फास्ट वाला कंप्यूटर लिए, हाई गीगाहर्ट्ज का हम प्रोसेसर लिए, लेकिन उसके साथ एनर्जी लिंक्ड है CV²F फॉर्मूला से. जितनी ही स्पीड ज्यादा है उतने ही उस पर वर्किंग ज्यादा हो रही है, और उतनी वर्किंग के साथ में उतनी ही करंट कंजम्पशन बढ़ रहा है, उतनी ही I²R लॉस हो रही है, उतनी ही हीट लॉस भी ज्यादा हो रहा है. तो ये सोर्स विकिपीडिया से लिया हुआ है जो मैं बताया फॉर्मूला आपको. तो प्रिजर्विंग एनर्जी पर आए तो लाइट, फैन, TV, computers remain on when we are not using, and we should turn them off and remove plug when not to use for long period. तो लाइट, फैन, TV, कंप्यूटर्स ये सब क्या रहते हैं, हमेशा माने ऑन रहते हैं, और हम लोग यूज कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं. तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, जब हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो हम लोग को ऑफ कर देना चाहिए. एंड वी शुड रिमूव प्लग आल्सो. जैसे कि मान लीजिए छुट्टी में घर जा रहे हैं, हॉस्टल से या घर से कहीं और जा रहे हैं, एक आध हफ्ते पूरा घर बंद रहना चाहिए, बंद रहने वाला है या रूम बंद रहने वाला है, तो आप प्लग भी निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने लीकेज करंट के बारे में ऊपर बताया है जो कि ऑफ स्टेट में भी होता है, अभी और बात करेंगे. वी शुड रिमूव प्लग्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बिकॉज लिटिल पावर इट कीप्स ऑन टेकिंग. प्लग अगर लगा हुआ है, ऑफ भी है, तो भी थोड़ा सा पावर आता रहता है. दिस इज कॉल्ड फैंटम लोड, एंड फैंटम लोड इज द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज ऑफ और इज इन स्टैंड बाई मोड. माने ऑफ भी है आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो भी उसमें छोटा सा फैंटम लोड कहते हैं, वो आता रहता है. एंड अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, दिस में अमाउंट टू अबाउट 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल. आपके यहाँ अगर 100 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रही है तो 10 रुपीज उसमें केवल फैंटम लोड के कारण हो सकता है. माने आपका टीवी, फ्रिज तो ऑफ है लेकिन प्लग लगा हुआ है,
तो उसके कारण भी छोटा सा एनर्जी कंजम्पशन होता रहता है, उसका वो अमाउंट 10% तक हो सकता है। एंड ऑफिसेज शुड इंस्टॉल सोलर पैनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, दिस विल सेव एनर्जी एंड रिड्यूस कार्बन एमिशन। सोलर पैनल कई सारे स्कूल कॉलेज ऑफिसेज में लग गया है, घरों में भी, तो होना चाहिए। इससे जब लाइट नहीं है तो भी आपका वर्क होगा और एनर्जी सेविंग भी होगी। वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन, रादर वी शुड यूज पेपर और जूट बैग, दीज आर बायोडिग्रेडेबल। Packed foods are imported from other countries or bought from other states. This needs transportation, which causes pollution. We should use local and organic foods. अभी 5 जून आएगा, एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो उसमें ये सब डिस्कस होता है। जो हम लोग पैक्ड फूड्स मंगवाते हैं दूसरे स्टेट से, दूसरी कंट्री से, तो बहुत हेवी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल कंजम्पशन होता है और फ्यूल कंजम्पशन से भी पॉल्यूशन होता है। तो हम लोग को लोकल एंड ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। वी शुड लीव मार्जिन एज लो एज पॉसिबल। जो कॉपी में हम लोग लिखते हैं तो लेफ्ट राइट मार्जिन छोड़ते हैं, या फिर पेपर पर प्रिंट करते हैं तो मार्जिन छोड़ते हैं। तो बाय डूइंग दिस नियरली 1 पेज इन ईच 5 पेजेस कैन बी सेव्ड। माने जहां पर 5 पेजेस हैं वहां 1 पेज की सेविंग कर सकते हैं। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन हम लोग कम करके 5 पेज पर एक पेज बचा सकते हैं। दिस विल सेव ट्री आल्सो एंड सिमिलरली वी शुड प्रिंट ऑन बोथ द साइड्स, दिस विल सेव पेपर। हम लोग को दोनों साइड में प्रिंट करना चाहिए। क्यों ये एक साइड में यू प्रिंट करते हैं, ये तो समझ से परे है क्यों ऐसा करते हैं। कहीं पर भी नहीं बोला है कि एक साइड आप प्रिंट करिए, लेकिन ऐसी प्रिंट करते हैं क्योंकि लगाए और वो खटखट प्रिंट करता चला जाता है। इको फ्रेंडली पीसीज हैव स्टार्टेड कमिंग अप। Veriton N281G is an eco-friendly computer which uses Intel Atom D425 processor. This computer has 2 GB RAM, 160 GB hard disk and Windows 7। थोड़ा पुराना ये डाटा है। प्रोफेशनल रिमेन्स अप प्री लोडेड। विंडोज उसमें Windows 7 प्रोफेशनल प्री लोडेड रहता है। तो ये जो एक इस तरह का वेरिटॉन जो है ये इको फ्रेंडली कंप्यूटर ये बनाया गया है, इको फ्रेंडली पीसी है ये, जिसमें कि पावर कंजम्पशन कम होता है और प्री लोडेड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो एनसीईआरटी कैथोड रे ट्यूब, जो कि हम लोग मॉनिटर के बारे में बात किए, शुरू ही में मॉनिटर के बारे में बात किए थे। व्हाइट स्क्रीन कंज्यूम्स 74 वाट एंड ब्लैक स्क्रीन कंज्यूम्स 59 वाट। जो ब्लैक स्क्रीन रहता है वो 59 वाट कंज्यूम करता है और व्हाइट स्क्रीन 74 वाट। नाउ यू कैन गेस विच वन इज बेटर। डू यू नो व्हाइल सर्फिंग ए वेबसाइट अराउंड 10 mg ऑफ CO2 इज एमिटेड एवरी सेकेंड। जो हम लोग केवल देखते रहते हैं माउस इधर उधर करके वेबसाइट ब्राउजिंग करते रहते हैं, 10 mg of CO2 is emitted in each second. If video and animation are present in website, then as high as 300 mg also is emitted, and in virtual reality games it is as high as 1000 mg. अगर वीडियो पिक्चर देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो तब तो 300 mg of CO2 each second will be emitted. और अगर इस तरह का गेम है तो 1000 mg तक भी हो सकता है। तो when a computer is on and we are not working on that computer, then also it emits around 40 to 80 mg of CO2 per hour. माने when your computer is on and you are, that means it is just on, then also your computer is releasing 40 to 80 mg of CO2 per hour, even if it is on without work. And few tips for energy saving is like this. If we are not using a computer for more than 1 hour, then we should turn off our computer. अगर 1 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं तो हमको ऑफ कर देना चाहिए. If we are not using the monitor for more than 15 minutes, then we should turn off the monitor also. And colorful screen savers
इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले मैं बताया वाइट स्क्रीन और ब्लैक स्क्रीन। तो कलरफुल स्क्रीन सेवर हम लोग जो लगाते हैं उससे भी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है। इफ यू वांट टू सर्च गूगल देन वी शुड मेक यूज ऑफ www.blackle.com and result of this comes through Google only, but it is black, so it consumes less energy. आप ट्राई करके देखिएगा blackle.com, ये गूगल ही है, गूगल का ही वर्जन है, लेकिन ये ब्लैक बैकग्राउंड में चलता है और इसलिए एनर्जी कंजम्पशन इसमें कम हो जाता है। blackle.com, it is a common practice. We leave the websites open. If the website contains video, graphics and animation, then bandwidth and electricity both get wasted and electricity bill also increases. By not leaving websites open, we can save thousands of kilowatts. माने हम लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट को ओपन छोड़ देते हैं और वेबसाइट में क्या रहते हैं, वीडियो, ग्राफिक, एनिमेशन, देन बैंडविड्थ एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ गेट वेस्टेड। आपका इलेक्ट्रिसिटी तो वेस्ट होती ही है, बैंडविड्थ भी होती है। और बैंडविड्थ कितना इंपॉर्टेंट है, मेरा अगर आप यूट्यूब लेक्चर देखें, एक बैंडविड्थ पर ही है, डॉक्टर संजय कुमार इंडिया, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें बैंडविड्थ मैं एक्सक्लूसिव डिस्कस किया हूँ। तो आप देखेंगे बैंडविड्थ, उसको आप रिफर कर सकते हैं, यूट्यूब लेक्चर मेरा डॉक्टर संजय कुमार इंडिया, उसके अंदर बैंडविड्थ वाला सर्च कर लीजिएगा। तो आपका बैंडविड्थ भी वेस्ट हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्ट हो रही है वो तो हो ही रही है। वेबसाइट आप केवल बिना वर्क के ओपन करके छोड़ें। एंड वी शुड अवॉइड द अननेसेसरी डाउनलोडिंग्स। रिपीटेडली डाउनलोड नहीं करना चाहिए। हम लोग करते हैं कि फास्ट इंटरनेट अपना चल रहा है ऑफिस में, कुछ करना नहीं है, एक डाउनलोड किए थे ऊपर से फिर से डाउनलोड किए, फिर से डाउनलोड करें। तो this habit should be removed. We should systematically arrange the downloaded materials in a folder so that repeated downloadings of the same material can be avoided. एक फोल्डर में आप उसको रख लीजिए, एक बार डाउनलोड हो गया तो उसी चीज को दोबारा क्यों डाउनलोड कर रहे हैं। And by keeping in mind these small things, we can save the environment from pollution. How to extend battery life of laptop? Monitor consumes more power than hard disk. मॉनिटर, मैं बार बार मॉनिटर पर ही आ जा रहा हूं। आप बोलेंगे मॉनिटर पे आप क्या आप रुक जा रहे हैं, शुरू से मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर कंज्यूम्स लॉट ऑफ एनर्जी। आजकल का तो मॉनिटर अच्छा एलईडी बेस्ड है, नहीं तो पहले तो पिक्सल वाले हर क्रॉस पॉइंट पे एक ट्रांजिस्टर होता था, वो एनर्जी कंज्यूम करता था। इवन नाउ आल्सो मॉनिटर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन ए कंप्यूटर। तो मॉनिटर कंज्यूम्स मोर पावर देन हार्ड डिस्क एंड सीपीयू। सीपीयू से भी ज्यादा पावर तो मॉनिटर ही कंज्यूम कर लेता है। एंड देयरफॉर कीप द ब्राइटनेस लेवल लो, दिस इज गुड फॉर आईज आल्सो। एक तो आप ब्राइटनेस कम रखेंगे तो आपकी आंखों के लिए भी सूदिंग रहेगा, अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा और पावर भी कम कंज्यूम करेगा। लैपटॉप हैज 3 ऑप्शंस। लैपटॉप में भी ऑप्शंस रहते हैं, हाई परफॉर्मेंस, बैलेंस्ड एंड पावर सेवर। हाई परफॉर्मेंस, बैलेंस्ड एंड पावर सेवर, तो सेलेक्ट पावर सेवर ऑप्शन और बैलेंस्ड ऑप्शन। हाई परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। और इन राइट साइड ऑफ टास्क बार, जो टास्क बार रहता है नीचे में, उसमें राइट साइड में सिंबल रहता है, सिंबल ऑफ बैटरी एंड प्लग कम्स, तो राइट क्लिक ऑन दैट एंड देन पावर सेवर ऑप्शन विल कम। तो आपको पावर सेवर पर वर्क करना चाहिए या फिर बैलेंस्ड पे वर्क करना चाहिए। जो टास्क बार पर नीचे में आता है आइकॉन एक, उस पर आता है सिंबल आता है बैटरी एंड प्लग का, उस पर आप जाके राइट क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड विथ यूएसबी पोर्ट ड्रॉ पावर फ्रॉम द बैटरी ओनली। आप जितने ही एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाते जाएंगे, यूएसबी पोर्ट आपके में 4 दिया है, चारों में एक एक लगा लिए। आपको ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली पावर कहाँ से आ रहा है, पावर तो पूरे बैटरी से आ रहा है ना, या फिर
आप अगर डायरेक्ट अगर वायर लगाए हुए हैं तो भी पावर वहीं से आ रहा है, या तो बैटरी से आ रहा है या फिर आपके चार्ज माने वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट से आ रहा है। तो इसलिए अननेसेसरी के सब यूएसबी पोर्ट में कुछ ना कुछ कनेक्ट करके रखे ही रहे, वो भी अच्छी हैबिट नहीं है। दिस डिवाइसेस कंज्यूम पावर इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग इट एंड जस्ट कनेक्टेड। मैं पहले ही बताया फैंटम लोड होता है। अगर ये डिवाइसेस कनेक्टेड केवल हैं और कोई वर्क नहीं हो रहा है तो भी थोड़ा सा पावर ड्रॉ करेंगे। इफ नॉट नीडेड रिमूव द एक्सटर्नल डिवाइसेस। ये आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए भी अच्छा है। जरूरत नहीं है तो आप पेन ड्राइव निकाल लें, उसको अननेसेसरी लगा मत छोड़ें। If laptop has become hot due to excessive use, its internal fan will have to work more. अगर लैपटॉप आपका हॉट अप हो गया तो आपके लैपटॉप को फैन को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, एंड फैन विल ड्रॉ पावर फ्रॉम बैटरी ओनली। वो पावर कहाँ से आएगा? बैटरी से आएगा। Therefore, put the laptop in cool place and try to keep the lower surface of laptop in contact of air. अगर लोअर सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में आ सके तो वो बहुत ही अच्छी कंडीशन, आइडियल कंडीशन होगी। लैपटॉप के बॉटम पर भी आप कहीं से एयर अगर दे सके तो। एंड पुट योर लैपटॉप इन हाइबरनेट व्हेन नॉट वर्किंग। हाइबरनेट पे लैपटॉप को आप रख दीजिए, दिस विल सेव एनर्जी। मैं बताऊंगा हाइबरनेट। लैपटॉप विथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विल हैव बिल्ट इन पावर सेविंग। विंडोज में रहता है पावर सेविंग का ऑप्शन अपने आप से। यू कैन ऑप्ट दैट व्हेन डिस्प्ले, हार्ड डिस्क एंड यूएसबी पावर शुड बी ऑफ। You can opt that when the display, hard disk and USB power should be off. लैपटॉप्स में ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग में जाकर है। There are various applications available which can save energy. For example, select power option, power plant, support system, etc. बहुत से और भी ऑप्शंस रहते हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं और एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। मैं बोल रहा था कि हाइबरनेट बताऊंगा। तो डिफरेंस बिटवीन स्लीप, हाइबरनेट एंड हाइब्रिड स्लीप। ये एक बार उड़ीसा में गया था तो वहाँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ये क्वेश्चन किसी ने पूछा, फिर मैं आई थॉट व्हाई नॉट टू पुट इट इन फॉर्म ऑफ स्लाइड ओनली। तो स्लीप, हाइबरनेट और हाइब्रिड स्लीप क्या है? हाइबरनेट इज फॉर लॉन्ग टाइम लाइक कुंभकर्ण। जैसे कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था कहा जाता है, तो ये हाइबरनेट का एग्जांपल है। और स्लीप इज फॉर स्मॉल टाइम। स्लीप का इसमें ऑप्शन आता है, आप देखेंगे तो शटडाउन के पहले स्लीप, हाइबरनेट, हाइब्रिड स्लीप का ऑप्शन आता है। स्लीप इज फॉर स्मॉल टाइम। इन स्लीप मोड ऑल द ओपन फाइल्स आर एंड एप्लीकेशंस आर रिटन इन रैम। स्लीप में क्या होता है, जितने भी ओपन फाइल्स हैं वो रैम में लिखे जाते हैं। देयरफॉर कंप्यूटर टेक्स लेस टाइम इन वेकिंग अप। ध्यान दीजिएगा। Whereas in Hibernate, all the open files and documents are written in hard disk. Therefore, wake up time is more. अब देख लीजिए, स्लीप मोड में हर जितनी फाइल है उसको किस में लिख रहा है? रैम में राइट कर रहा है। हाइबरनेट में किस में कर रहा है? हार्ड डिस्क में राइट कर रहा है। इसलिए जस्ट आप जब ऑन करेंगे स्लीप मोड से, वो ऑन बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि रैम से आना है। और हाइबरनेट को ऑन करने में टाइम ज्यादा लगाएगा क्योंकि हार्ड डिस्क से आना है। फायदा ये है हाइबरनेट में कि वो हार्ड डिस्क में आ गया। स्लीप मोड में वो केवल रैम में ही रहा। इन स्लीप मोड इफ वी रिमूव द प्लग देन डाटा विल वैनिश। चूंकि स्लीप मोड में मैंने बताया कि रैम में लिखता है, और अगर कहीं पावर ऑफ कर दिए पूरी तरह से तो रैम भी ऑफ हो जाएगा, डाटा भी ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। But in Hibernate, data will not vanish as it is on hard disk. Therefore, if computer is in Hibernate and we remove plug, then also data will not vanish. माने हम लोग Hibernate में करके अगर पावर ऑफ भी कर दिए, करना नहीं चाहिए लेकिन कर भी दिए तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा।
जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, जैसे कि आप लोगों को मैं ये सेशन आमने सामने दे रहा होता और 1 घंटे के बाद मैं सोचता है यार थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए लंच या टी टाइप का ब्रेक ले लेते हैं, तो उस समय मैं इसको स्लीप मोड में डाल सकता था। द कंप्यूटर टेक्निकली says stays on but only uses a bit of power for RAM। माने कंप्यूटर जो है ओनली यूजेस इस बिट ऑफ पावर फॉर रैम, रैम के लिए बहुत कम लगता है। क्या है कि इन स्लिप मोड, एक मिनट इसको मैं थोड़ा ठीक कर लूंगा, इसको ऊपर लिखना था, दी टेक इन स्लिप मोड। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि स्लिप मोड में क्या होता है कि रैम में चूंकि डाटा रहता है लेकिन बहुत ही कम पावर उसमें कंज्यूम होता रहता है, लेकिन हाइबरनेट में क्या होता है वो पूरी तरह से पावर कंजम्पशन बंद हो जाता है। स्लिप मोड हाइबरनेट दोनों ही अच्छा है, दोनों में पावर सेविंग है, लेकिन हाइबरनेट में पावर सेविंग और ज्यादा है। स्लिप मोड में क्योंकि रैम में है तो थोड़ा सा पावर लगता ही रहता है। So Hibernate allows your computer to turn off entirely, which means once your computer is in hibernate mode, it uses zero power लगता है। Sleep mode is also called standby mode भी कहा जाता है sleep mode को। One more mode is nowadays it is available, hybrid sleep। Hybrid sleep mode is a combination of sleep and hibernate modes। ये स्लिप और हाइबरनेट का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड स्लिप। हाइब्रिड मोड इज मींट फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उसमें हाइब्रिड मोड होता है। इन हाइब्रिड स्लिप ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशंस आर रिटन इन रैम एज वेल एज इन हार्ड डिस्क। देख लीजिए हाइब्रिड स्लिप में क्या हो रहा है, वो रैम एज वेल एज हार्ड डिस्क दोनों में राइट कर रहा है, एंड देयरफॉर स्लीप टाइम इज हाई। स्लीप टाइम इज हाई क्योंकि हार्ड डिस्क में उसको लिखना है तो स्लीप टाइम इज हाई, बट वेकअप टाइम इज लेस क्योंकि रैम से वो तुरंत ले लेगा। जब वेकअप हो रहा है तो रैम से ले लेगा, और राइट कर रहा है तो हार्ड डिस्क पे भी राइट करना पड़ रहा है, तो इसलिए स्लीप टाइम इज हाई बट वेकअप टाइम इज लेस। देयरफॉर इफ व्हाइल मेकिंग अप डाटा इज नॉट फाउंड इन रैम देन डाटा विल बी टेकन फ्रॉम हार्ड डिस्क। मतलब अगर किसी ने पावर ऑफ कर ही दिया तो फिर क्या होगा, वो रैम से नहीं फिर हार्ड डिस्क से भी डाटा ले सकता है। हाइब्रिड स्लिप में डाटा इज रिटेन ऑन रैम एज वेल एज ऑन हार्ड डिस्क, एंड देयरफॉर सपोज computer rather, because hybrid sleep is available only in desktop, is turned off, then it will take data from hard disk, and if it is not turned off, then data will be taken from RAM। The hybrid sleep mode is enabled by, आप देख सकते हैं हाइब्रिड मोड हाइब्रिड स्लीप इन विंडोज 7 ऑनवर्ड्स, ऑन विंडोज 7 के बाद से है ये इन कंप्यूटर, एंड डिसेबल्ड ऑन लैपटॉप्स। ये लैपटॉप पे डिसेबल्ड रहता है। व्हेन इनेबल्ड इट ऑटोमेटिकली पुट्स योर कंप्यूटर इनटू हाइब्रिड स्लीप मोड व्हेन यू पुट इट इनटू स्लीप मोड। तो ये विंडोज 7 के बाद से अवेलेबल है। मैं बता रहा हूँ कि अपने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मैं जहाँ पर हूँ, प्रोफेसर हेड एंड डीन हूँ, तो वहाँ पर मैंने पर्सनली कुछ स्टेप्स लिए हैं जो कि ऑफिस के अलावा हैं, विच आर लाइक दिस स्टेप्स टेकन इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर टुवर्ड्स ग्रीन कंप्यूटिंग प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ CO2 एमिशन इन डिपार्टमेंट फॉर 5 years बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक मेरा कॉपीराइट भी है, एक CG कॉस्ट का प्रोजेक्ट था, उसमें किए थे कि कैलकुलेशन ऑफ CO2 एमिशन हमने अपने डिपार्टमेंट में 5 साल में कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिसिटी के कारण कितना एमिशन हुआ है वो निकाला है अपने डिपार्टमेंट के लिए। आप लोग भी निकाल सकते हैं जहां जहां हैं आप लोग। और उसके अलावा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ट्रांसपोर्टेशन
के कारण कितनी इलेक्ट्रिसिटी इमिट हुई वो भी निकालें हम लोग अपने डिपार्टमेंट में। हम लोग अपने डिपार्टमेंट में दोनों साइड में पेपर पर प्रिंट करते हैं, मैं तो करता ही हूँ। और हर क्लास में एक एनर्जी मॉनिटर बनाते हैं जिसका काम होता है लाइट फैन ऑफ करना। और कैलकुलेशन ऑफ CO2 एमिशन इन डिपार्टमेंट फॉर 5 years बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैं कैसे किया हूँ वो बता रहा हूँ। तो मीटर रीडिंग्स ऑफ each month for last 5 years in School of Studies Computer Science IT रविशंकर यूनिवर्सिटी कलेक्टेड। 5 साल का एनर्जी मीटर बिलिंग उसको पहले हम लोग नोट किए, रिकॉर्ड किए, माने पहले निकलवाए उसको। मीटर रीडिंग्स वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी सेक्शन, माने इंजीनियरिंग सेक्शन एक होता है, वहां से हमको पूरी मीटर रीडिंग मिली। द कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग is divided into 3 parts. Each part is having its own separate energy meter. यहाँ पे 3 मीटर लगे हुए हैं। Month wise energy consumption for the year 2009 to 9-10 in all 3 parts is tabulated in table 1. The last column of table 1 shows total electrical consumption month wise for the financial year 9-10. Similarly table 2 shows data for year 10-11 और इस तरह से है। ये देख लीजिए, ये 3 एनर्जी मीटर का 3 कॉलम है। ये ईयर 9-10 का है, 2009-10 का है, ये हर महीने का है। और इस तरह से एनर्जी कंजम्पशन कितना कितना है उसको नोट किए और टोटल किए हर महीने का। इस तरह का 5 साल का डाटा हम लोगों ने गैदर किया। और टोटल CO2 एमिशन इन किलोवाट आवर इंटू 0.81 किए। एमिशन फैक्टर होता है 0.81, तो अभी बताएंगे आपको इसके बारे में एमिशन फैक्टर। तो इतने से कितना किलो ऑफ CO2 निकला, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे 82128 यूनिट कंज्यूम हुई, तो उससे इतना केजू CO2 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ओनली ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वाज एमिटेड। हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से अकेले एक साल में इतना किलो CO2 एमिट हुआ, आप देख सकते हैं। एंड सोर्स ऑफ एनर्जी फैक्टर ये जो 0.81 लिए वो क्या है, CEA है, दिसंबर 2014 का, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी विच इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड कैलकुलेटिंग स्टैटिस्टिक्स ऑन पावर जनरेशन एंड यूजेस इन इंडिया। ये ऑथेंटिक सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है 0.81। तो इतना CO2 इमिट हुआ, ये रेफरेंस है इसका, इस वाले पेपर, इसका कहाँ से हमने एमिशन फैक्टर लिया उसका। और ये है CO2 एमिशन के बारे में जो गाइडलाइन होती हैं, ये CO2 बेसलाइन डाटाबेस फॉर इंडियन पावर सेक्टर यूजर गाइड, ये CEA इस तरह की ये PDF से लिया है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। और इस तरह का है, ये देखिए इंडिया में 0.81 है 9-10 के लिए, हर साल का अलग अलग होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है फैक्टर। तो इसी तरह से 10-11 के लिए भी हम लोगों ने निकाला। 10-11 में इतना किलो CO2 इमिट किया गया, CO2 केवल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। फिर 11-12 में कितना निकाल हुआ, ये उसका भी निकालिए, इतना CO2 हुआ। फिर 12-13 में भी निकाले, इस तरह से ये निकाले। फिर 13-14 में किए। फिर ये एक समरी बनाए कि ईयर वाइज एमिशन फैक्टर कितना था 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14 में, और इतना CO2 एमिट हुआ केजी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। टोटल 5 साल में इतना एमिट हुआ, देख सकते हैं आप लोग। तो टेबल 6 समराइजेज द CO2 एमिशन फॉर ईयर 2009 to 10। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना एनर्जी एमिट हुआ, ये ग्राफिकल फॉर्म में है। 2009-10 में ये इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स है ब्लू वाला, और CO2 ये ग्रीन वाला है। ये लेफ्ट वाला ये क्या है, यूनिट है, यूनिट कंजम्पशन,
और ये CO2 एमिशन है। तो ये 5 ईयर का टोटल है क्यूमुलेटिव। तो इस तरह से हुआ calculation of CO2 emission in Department of Computer Science because of transportation. All the activities from different modes of transportation lead to the emission of several million tons of gases into the atmosphere. जो हम लोग अपने स्कूल कॉलेज जाते हैं उसमें भी उसमें सभी गैसेज एमिट होती हैं। मैं शुरू में कार्बन एमिशन गैसेज के बारे में बात किया था। तो गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, nitrous oxide, chlorofluorocarbon and perfluorocarbon are responsible for climatic change, and a carbon footprint is a calculation of the total amount of CO2 emitted from a source. So carbon footprint due to transportation is given by the formula distance traveled in kilometer per year into emission factor is equal to kg of CO2. माने कितने डिस्टेंस चले और एमिशन फैक्टर क्या है उससे अभी आगे निकालेंगे। सोर्स इसका क्या है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट इंडियन क्लीन एयर प्रोग्राम ICAP, और कॉम्प्लेक्सिटी भी मैंने कैलकुलेट किया। इन आवर वर्क वी कैलकुलेट CO2 emission by multiplying emission factor with kilometers or number of electrical units consumed. Therefore, our problem lies under the category of polynomial time problem with a time complexity of 1. माने सिंपल कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी है। CEA जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी प्रोवाइड्स एमिशन फैक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड इंडियन क्लीन एयर प्रोग्राम abbreviated as ICAP provides emission factor for two-wheelers. A sample report published in 2008 is shown in next slide. ये देखिए, ये है कहाँ से एमिशन फैक्टर ले रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ सोर्स, जैसे कि आपको ये नहीं लगे कि कहीं से भी उठा लिए 0.81 0.83। तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट इंडियन क्लीन एयर प्रोग्राम है, ये MOEF माने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट होता है, वहाँ से है ये API पुणे का, और इस तरह का CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी प्रोवाइड्स एमिशन फैक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या दे रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे रहा है, ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन। तो इस तरह से है। तो ये एमिशन फैक्टर है, ये देख लीजिए, ये जैसे मोटरसाइकिल का है, मोटरसाइकिल से कितने कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है ग्राम पर किलोमीटर। आपकी मोटरसाइकिल जो है ये देख लीजिए, 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल से 24.82 CO2 पर ग्राम पर किलोमीटर एमिट होगा। ये टेबल C लिया हुआ है एमिशन फैक्टर, और ये आपका अलग अलग गाड़ियों से, अलग अलग व्हीकल से कितने कितने एमिशन होगा वो दिया हुआ है। मोटरसाइकिल से है, 3 व्हीलर से है, 3 व्हीलर 2 स्ट्रोक से है, ये अलग अलग व्हीकल से सबका दिया हुआ है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो स्कूटर से, स्कूटी से कितना सबका एमिशन फैक्टर दिया हुआ है। तो अब हम लोग को अपने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में करना था। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट थ्रू ट्रांसपोर्टेशन वी हैव कलेक्टेड डिटेल्स ऑफ व्हीकल पर किलोमीटर पर ईयर ईच स्टूडेंट एंड स्टाफ, माने जितने स्टाफ स्टूडेंट है सबसे हमने डाटा कलेक्ट किया। एंड फॉर कलेक्टिंग डाटा उसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चनर बनाया। क्वेश्चनर वाज प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर इवैल्यूएटिंग fuel consumption by vehicles used by staff and student of SOS in computer science IT department of शंकर यूनिवर्सिटी रायपुर, एंड सैंपल ऑफ क्वेश्चनर इज अटेंड। इस प्रकार का लिए, जैसे मैंने भी अपना फॉर्म भरा, क्वेश्चनर भरा इस तरह से। उस समय बजाज डिस्कवर से मैं आता था मोटरसाइकिल से, 4 किलोमीटर मेरा घर दूर है, तो इस तरह का मैं फॉर्म भरा। ये CG कॉस माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का पार्ट है, ए मॉडल ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग फॉर छत्तीसगढ़, ये मैं भरा।
इस तरह का पर डे लगभग 12 रुपया लगता था फ्यूल कॉस्ट बाइक में। ये इस डेट को मैं भरा, तो इस तरह से सभी से भरवाए और डाटा कलेक्ट किए। एंड वी हैव applied the emission factor as provided by ICAP on transportation to calculate CO2 emissions in kg, and a survey was conducted in the department by collecting daily report of kilometers travelled by vehicle of student and the staff members, which is depicted in table 1 and 2। इस तरह से दिए, देखिए मेरा नाम भी लिखा हुआ है, मेरा घर कितनी दूर है, मैं कैसे आता हूँ, कितना टोटल मैं एक महीने में चलाता हूँ, ये हमारे यहाँ के बाकी स्टाफ्स का भी है। उसके बाद से सभी स्टूडेंट्स का भी हम लोग कलेक्ट करें, और इस तरह से हम लोग कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में देखें, टोटल किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय स्टूडेंट्स इन बाइक इन 1 month इज दिस मच। टोटल किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय स्टूडेंट्स इन स्कूटी, क्योंकि बाइक और स्कूटी का अलग अलग है एमिशन फैक्टर। स्कूटी से कितना चल रहे हैं, टोटल किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय स्टाफ्स एंड स्टूडेंट्स इन सीएस डिपार्टमेंट, बाइक से कितना चल रहे हैं स्टाफ स्टूडेंट, स्कूटी से स्टाफ स्टूडेंट कितना किलोमीटर चल रहे हैं, टोटल किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय स्टाफ स्टूडेंट्स इन बाइक इन 1 year अब कितना चल रहे हैं, कन्वर्ट कर दिए उसको 1 year में। और इस तरह से फिर एमिशन फैक्टर 24.82 था और बाइक के लिए, और 38.54 स्कूटी के लिए था। तो इस तरह से टोटल CO2 एमिशन बाय स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ सीएस डिपार्टमेंट इन बाइक इन 1 year वो कितना हुआ, वो इतना आया। टोटल CO2 एमिशन इन केजी बाय स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑफ सीएस डिपार्टमेंट इन स्कूटी कितना आया, वो इतना आया। तो 3294 किलो CO2 was emitted by all students and staffs of CS department in 1 year। आप सोच सकते हैं कि 3000 और 6000 माने लगभग 10,000 किलो तो CO2 एमिशन केवल ट्रांसपोर्टेशन ही से हो गया, केवल CS डिपार्टमेंट में। तो इसी को और फॉर more clarity, yearly CO2 emission by staff and student of CS department through transportation is done in pie chart and bar graph form below। ये इस तरह से है, CO2 emission due to transportation in kilo is like this। ये बाइक का है ब्लू वाला और स्कूटी वाला है रेड वाला, इतना CO2 emission हो रहा है पाई चार्ट में दिखाया गया। ये बाइक का है, ये स्कूटी का है, ये टोटल CO2 emission है ट्रांसपोर्टेशन के कारण सीएस डिपार्टमेंट का केवल। इसको करते हुए हमने एजम्पशन किया है कि नोट दैट स्टूडेंट्स कम फॉर अराउंड 9 months इन ए ईयर। हम लोगों ने माना स्टूडेंट्स 9 महीने आते हैं, 3 months फॉर क्लासेज इन ईच सेमेस्टर, 1 month फॉर एग्जामिनेशन एंड 15 more days फॉर अदर वर्क इन ए सेमेस्टर। Similarly, contact teachers also come for around 9 months, but in remaining period of 3 months some students come for doubts, makeup classes, etc. Staff take few days leave, but we are ignoring these small parameters and rounding to now 9 months to 1 year for simplicity। Therefore, this will give somewhat pessimistic picture। माने and rounding 9 months to 1 year for simplicity। माने हम लोग उसको वैसे तो थोड़ा कम आते हैं, लेकिन हम लोग उसको 1 year मान लिए एज दी व्हीकल। इससे थोड़ा सा रिजल्ट आपका पेसिमिस्टिक साइड, माने थोड़ा सा निराशावादी आएगा, लेकिन हम लोग उसको राउंड कर दिए। एज दी व्हीकल्स बिकम ओल्डर दे इमिट मोर CO2, माने जितना सी एमिशन फैक्टर दिया है वो आइडियल कंडीशन के लिए। अपना व्हीकल अगर ज़्यादा अपनी पुरानी हो गई, 6 साल 7 साल पुरानी, तो CO2 और ज़्यादा इमिट करती है। इसको हम लोग इग्नोर किए, बट वी आर इग्नोरिंग दिस पैरामीटर एंड एज्यूम कांस्टेंट एमिशन बाय ऑल व्हीकल। और ये तो रही बात पूरी कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेशन की। और मैंने अपने डिपार्टमेंट में एक इस तरह की नोटिस निकाली, मैंने बताया कि दोनों तरफ प्रिंट करते हैं, और मैं अपने लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और ए स्टेप टुवर्ड्स सेव अर्थ
in a step towards eco-friendly, it is advised that अपने डिपार्टमेंट में देखिए सील वगैरह सब लगा है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जितने भी रिकॉर्ड्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होंगे एक्सेप्ट इनिशियल फ्यू पेजेस ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी प्रिंटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ पेजेस। जितने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होंगे दोनों साइड में प्रिंट होंगे। दिस विल सेव मनी पावर एंड अल्टीमेटली द ट्री। दिस विल बी स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स सेव अर्थ मूवमेंट बाय द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ्स ऑफ द डिपार्टमेंट। ये मेरा साइन है और कॉपी पूरे वीसी ऑफिस तक है इसकी। तो ये एक स्टेप सभी को अपना अपना ये सब को सर्कुलेट हुआ। तो इस तरह से ड्राइव टू प्रिंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ पेपर ये मेरा था। ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल ये तो आया था कि आपको ये करना है। देयर वाज ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंटिंग ओनली ऑन वन साइड ऑफ पेपर because paper used to be thin and typewriters were used only at that time. Even today also in Supreme Court it is written to print only in one side of paper. Supreme Court में आज भी लिख रहा है कि एक ही साइड में करिए। पहले के पेजेस बहुत पतले होते थे, वो डबल साइड पे प्रिंट हो ही नहीं सकते थे और टाइपराइटर से उस पर स्ट्रोक करके प्रिंट किया जाता था। आजकल तो वैसी बात नहीं है, लेकिन हर जगह आज भी होता है। देयर इज ए रिट पेंडिंग, एक सुप्रीम कोर्ट में रिट भी है अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस। सो वन कैन टेक ए लीगल स्टैंड दैट नोवेयर इज रिटन टू प्रिंट ओनली ऑन वन साइड ऑफ पेपर, देयरफॉर विल पावर देयरफॉर लेस पावर विल बी नीडेड। विल लिखा हुआ है। माने कहने का मेरा ये मतलब है कि मैंने जो ये नोटिस निकाली तो केवल ऐसे ही नहीं कि खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक किसी ने रेट दिया हुआ है कि दोनों तरफ अपने को प्रिंट करने का ऑर्डर दे देना चाहिए, हर तरफ। क्योंकि एक तरफ प्रिंट करने का तो ब्रिटिश रूल में होता था, जबकि पेजेस बहुत पतले टाइप के होते थे तब के। नाउ विथ बॉन्ड पेपर, हम लोग के पास बॉन्ड पेपर होता है, लेजर प्रिंटर होता है। प्रिंटिंग ऑन वन साइड ऑफ paper is absolutely not needed. In India, billion of pages can be saved by printing on both the sides of paper. India में ही बहुत पेजेस और ट्री बचाए जा सकते हैं। And nowadays printers are also available which can print automatically on both the sides of paper. Therefore, manual insertion of paper is in the printer is not required. तो इस तरह से हम लोग करे हुए हैं। And following are the names of energy monitors फॉर सेशन। जो मैं आपको बताया कि एनर्जी मॉनिटर बनाते हैं, उनका काम ये होता है लाइट फैन ऑफ करना। तो इस तरह से हम लोगों ने हर क्लास के लिए भी बनाया हुआ है। तो यही है, कंक्लूजन पर आ रहे हैं अब हम लोग। तो लो लेवल ऑफ अवेयरनेस एग्जिस्ट अबाउट ई वेस्ट, therefore government should come up with stricter norms for disposal of e-waste. e-waste जैसे घर में भी हम लोग के ट्यूबलाइट वगैरह निकलती है, कहीं भी फेंक देते हैं। ई-वेस्ट को अपने को अलग प्रकार से डिस्पोजल करने की गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए और करना चाहिए। by avoiding wastage of energy and adopting new technologies, we can save electricity bill as well as decrease the pollution level in air, water and soil. Thus can give the future generation a better tomorrow. माने हम लोग एनर्जी को वेस्ट कम करें और न्यू टेक्नोलॉजी यूज करें और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अपना सेव होगा और फ्यूचर को एक अच्छा हम लोग को सॉइल, वाटर, एयर हम लोग दे सकेंगे। एंड चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वी आल्सो ओ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक पॉल्यूशन। ये हम सबकी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है कि हम लोग पॉल्यूशन कम करें rather than blaming or advising government and society. We should exercise green computing practices in our daily life. This is the duty of each and every individual to adopt green computing practices. तो यही था। Thank you very much for patient hearing. Thank you very much, sir. Thank you. हाँ, Thank you very much, sir.
for giving interactive and nice presentation on green computing for better utilization of computing devices to protect our environment, sir. Now I request all the participants, if there any query, please write it on chatbot or directly you can ask to our expert, sir. Is there any query from participant side? Later on they can ask. Anytime you can call me also. Even if you have some technical query, you can call and ask me afterwards also. No problem. Okay. So thank you, sir, once again. Now I request Dr. Rohit Miri, sir, HOD, Department of Computer Science and Engineering, C.V. Raman University, to deliver vote of thanks. Sir, please. Hello. 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 Yes. Yes, sir, you are audible. Okay, sir. Thank you, Tandon, sir. On behalf of I, Dr. Rohit Miri, Head, Associate Professor, and from entire members from CSE department, first of all, I am very thankful to Professor Sanjay Kumar, sir, for delivering such a nice lecture on given computing. We all knew in this seminar to how we use our electronics device with less power consumption to protect our environment from emission of carbon dioxide. We all promise to use or follow all the methodologies that sir told us to protect our environment. From today onwards, we will not put our laptop or computer or electronic device on if it is not required at that time. And we will also follow sir's what he told, that we will perform the calculation of carbon dioxide emission in our university, and uh, we will also print both the side on the paper, and we will also nominate few students to all the class to maintain the emission of carbon dioxide. I am also very thankful to all the participants for their presence and contribution in this seminar on green computing. I especially thanks the person who have been the backbone of the event, our CVRU staff from and other academic staff as well as administrative staff for this successfully completion of this one-day seminar on green computing. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir, once again. Dear participants, I have just shared feedback form